Let me ask you something honestly. How many of you want to improve your English, but you feel like you don't have enough time? You have thought things like, my English is not very strong, I want to speak better, but I'm very shy. I'll improve my English later when I have more time, but of course that never happens. But here is the surprising truth. You don't need hours of practice every day to improve your English. In fact, if you follow a simple 20-minute routine daily, your English can improve dramatically within a few months, I assure you that. So yes, just 20 minutes a day. Hello everyone, I am Kirti from Planet Spark, and in this video I'm going to share a simple and powerful 20-minute English routine, especially for students from class 9th to class 12th. This routine will help you to improve your vocabulary, or to make you more confident in speaking, to write better answers in your exams even, and gradually to become more fluent in English. So, if you want to become more fluent in English, please make sure you stay connected till the end and you watch the entire video. If you follow this structure, if you follow this routine seriously, you'll be able to definitely improve your English this year. So, let's start. Now, first thing is, कॉमन थॉट्स स्टूडेंट्स हैव अबाउट इंग्लिश. बहुत ही बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं कि माई इंग्लिश इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई फील स्टक. I want to speak better, but I get really shy and I start feeling very nervous. I will improve my English later when I have more time. Like I said, you don't need hours, you just need 20 minutes a day. Now let's understand what is this 20-minute formula that we are going to talk about, right? But before that, what are the common mistakes students make in their life? The first is कि वो पढ़ते तो है इंग्लिश बट सिर्फ एग्जाम्स से पहले. अगर आप सिर्फ एग्जाम्स से पहले इंग्लिश पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो आंसर्स को लर्न करने के लिए, how are you going to improve your English? Ask yourself that. Memorizing the answers without understanding, आप बस रट्टा मार रहे हो, सिर्फ मेमोराइज लर्न कर रहे हो आंसर्स को, उनको समझ नहीं रहे हो कि उन आंसर्स में एक्चुअली जो आइडिया है वो क्या है. And the third is you avoid speaking due to shyness. बहुत बच्चे जो है उनको public speaking का इतना ज़्यादा fear होता है. They are so afraid of speaking in front of someone that they don't even try. So make sure that you realize कि English जो है वो एक skill है. It's a skill. और कोई भी skill practice से easily develop हो जाती है. So make sure you have a growth mindset. Now moving on. This is the 20-minute English routine. Now the first is 5 minutes of writing, 5 minutes of vocabulary, 5 minutes of speaking, and 5 minutes for writing. बस अगर आप 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स के लिए अगर आप हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, यू विल बी एबल टू डेफिनेटली इंप्रूव योर इंग्लिश. 20 मिनट, 1 घंटा तो हम ऐसे ही डूम स्क्रॉलिंग करने में निकाल देते हैं, राइट. तो आप 20 मिनट तो अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में इंप्रूव करने के लिए चीज़ों में, राइट. सो नाउ मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. या नाउ व्हाट इज दिस 5 मिनट्स ऑफ रीडिंग? क्या पढ़ सकते हो आप एग्जैक्टली? The first is short news articles. News articles पढ़ सकते हो. न्यूज़पेपर में जो editorials भी होते हैं, you can even read that. Next comes English story books. कोई भी एक book pick कर लो और try करो आप हर रोज 3 to 4 pages पढ़ रहे हो. और आप कुछ ब्लॉग्स या फिर एजुकेशनल वेबसाइट्स पे जा सकते हो और उनके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, या फिर इवन ऑन इंस्टाग्राम अ लॉट ऑफ टाइम्स कोई पोस्ट होती है और उसके नीचे बहुत बड़ा सा कैप्शन होता है और हम नहीं रीड करते, वी जस्ट स्क्रॉल इट, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन पॉज इट और आप वो भी पढ़ सकते हो. इवन दैट वुड काउंट एज रीडिंग. एंड द नेक्स्ट इज गुड इंग्लिश कैप्शंस और पोस्ट्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट. नाउ आफ्टर यू हैव डन रीडिंग दीज, आप कोई भी एक चीज़ पढ़ लो, आस्क योर सेल्फ कि जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उसका मेन आइडिया क्या है. आपका जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट वेरी क्लियरली. सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के ख़त्म नहीं करना है आपको पेज या फिर जो भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो. आपको एक्चुअली क्या करना है, समझने का ट्राई करना है कि उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट.
नाउ द नेक्स्ट इज 5 मिनट्स ऑफ वोकैबुलरी. या तो आप अलग से कुछ 3-4 वर्ड्स लर्न कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, हमने जो इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, एडिटोरियल्स, ब्लॉग्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स, आप अगर ये हर रोज़ पढ़ रहे हो फॉर 5 मिनट्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड 3 to 4 वर्ड्स जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, उन्हीं वर्ड्स को यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक along with the meaning and try to make sentences with it. आपको मीनिंग लिखना है उन वर्ड्स का क्लियरली और उनको यूज करना है टू मेक अ सेंटेंस. सिर्फ एक नहीं, आप एटलीस्ट 3 या 4 सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करो और ऐसे सेंटेंसेस लिखो जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हो. इमेजिन करो अगर आप 5 वर्ड्स लर्न कर रहे हो एवरी डे, तो आप 1500 से भी ज़्यादा वर्ड्स लर्न कर पाओगे. आप 1500 से भी ज़्यादा वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में ऐड कर पाओगे. इट्स ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ऑल्सो डिस्कस एन एग्जाम्पल हियर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वर्ड लर्न किया है कॉन्फिडेंट. आई नो बहुत ईजी वर्ड है, बट मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर नोटबुक. फिर आप उसका मीनिंग सर्च करो और मीनिंग भी आप जो लिख रहे हो नोटबुक में वो इस तरीके से लिखो कि आपको वो मीनिंग ईजिली समझ में आ जाए. बहुत सिंपल वर्ड्स में उसका आपको मीनिंग लिखना है अपनी नोटबुक में. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? फीलिंग श्योर अबाउट योर सेल्फ. अब उसके बाद सेंटेंस लिखने का ट्राई करो उसके साथ. शी फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज द प्रेजेंटेशन went well, right? तो मतलब आपको क्या करना है, आप वर्ड लिखोगे, वर्ड के बाद आपको मीनिंग लिखना है इन वर्ड्स दैट यू अंडरस्टैंड, और फिर आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं जिन सेंटेंसेस से आप रिलेट कर पा रहे हो. सो जस्ट बाय डूइंग दैट आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे अपनी वोकैबुलरी को. नाउ मूविंग ऑन, 5 मिनट्स ऑफ स्पीकिंग. आप हर रोज़ क्या कर सकते हो, अपने दिन को डिस्क्राइब कर सकते हो. यू कैन डिस्क्राइब हाउ योर डे वेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके दिन की जो भी डिटेल्स है आप मिरर के आगे खड़े हो सकते हो एंड यू कैन स्पीक द इंटायर डिटेल्स दैट आई woke up at 7 o'clock in the morning, then I brushed my teeth and I took a bath and then I got ready for school, then I had breakfast, for breakfast I had this, then I went to my school, or right. So आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आपके पूरे दिन की डिटेल्स हैं, आपने स्कूल में क्या सीखा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और उनको बोलने का आपको प्रैक्टिस करना है. या फिर आपने अगर स्कूल में कोई नया टॉपिक लर्न किया है तो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके, व्हेन यू आर स्पीकिंग. और थर्ड ऑफ ऑल, या फिर आपने कोई मूवी देखी है या फिर कुछ कार्टून देखे हैं या फिर एनी काइंड ऑफ वीडियो यू सॉ, राइट, तो उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो. इट कैन बी एनीथिंग, बस मेक श्योर कि आप 5 मिनट दो टू स्पीकिंग इंग्लिश. क्योंकि रीडिंग से, वोकैबुलरी से ठीक है, आपकी रिटन वाला तो हो जाएगा अच्छे से, लेकिन जब तक आप एक्चुअली बोलना नहीं शुरू करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे. नाउ द लास्ट 5 मिनट्स यू हैव टू गिव फॉर राइटिंग. जैसे हमने बात की कि आपको कुछ 5 मिनट्स देने हैं रीडिंग के लिए. जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसको समराइज कर सकते हो इन दोज 5 मिनट्स ऑफ राइटिंग. हाउ योर डे वेंट, राइट, आप उसके बारे में लिख सकते हो. कोई भी एक्सपीरियंस आपने किया है आज, कोई भी चीज़, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर डे, यू कैन समराइज समथिंग यू जस्ट रेड, मे बी यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द स्टोरी ऑफ अ मूवी दैट यू जस्ट सॉ, राइट. इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग. जस्ट मेक श्योर यू राइट डाउन 3-4 सेंटेंसेज ऑन एनी टॉपिक एट ऑल, और धीरे धीरे उनको 3-4 से यू कैन इंक्रीज टू 10 सेंटेंसेज एवरी डे और 15 सेंटेंसेज एवरी डे. प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. आपको लेटर्स लिखने में भी हेल्प करेंगे. जो राइटिंग सेक्शन होता है आपके एग्जाम में, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, इन राइटिंग द लेटर्स, डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, एसेज, लॉन्ग आंसर्स, एनालिटिकल पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, राइट. इन सब चीज़ों में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इफ़ यू सिंपली फॉलो दिस 20 minutes rule. You might not believe it, but I still follow this routine. I read for 5 minutes every day, maybe more than 5, right? I speak English every day with my friends, with my colleagues, right? And I also write. What I do is I maintain a journal, right? So maybe you can also do the same thing कि आप एक journal maintain कर सकते हो, and then you can also write about it. So just doing these things, right? सिर्फ 20 मिनट आपको देना है. I feel like हम सब लोग 20 मिनट अपनी लाइफ के दे सकते हैं टू डेवलप अ स्किल विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर लाइफ. नाउ लाइक आई सेड कि ये जो रूटीन है, ये रीडिंग, वोकैबुलरी, स्पीकिंग, राइटिंग, ये आपके एग्जाम्स में बहुत
आपकी हेल्प करने वाला है। रीडिंग विल हेल्प यू इन अनसीन पैसेजेस। वोकैबुलरी जो है आपको एसेज या फिर जो भी राइटिंग स्किल में आपको आंसर्स लिखने होते हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। you'll be able to use stronger vocabulary, stronger words, तो एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीकिंग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बोलना तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाओगे विद अदर्स। एंड द लास्ट इज राइटिंग। इट्स गोइंग टू हेल्प यू स्कोर हायर इन द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिटरेचर में या फिर राइटिंग स्किल्स में। सो सी बस ये 20 मिनट का हर रोज जो प्रैक्टिस आपको करना है वो इतना फ्रूटफुल हो सकता है आपकी लाइफ के लिए भी, एंड कैन ऑल्सो हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर exams. Now just 3 extra tips I want to give you all from my side. Be consistent. बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत स्टार्टिंग में इंथुजियास्टिक फील करते हैं, 2-3 दिन सब चीज़ें करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे स्टॉप डूइंग इट इवेंचुअली। ये नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर आप ये सिर्फ 10 मिनट के लिए भी करना चाहते हो, इवन दैट इज़ फाइन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 20 मिनट नहीं दे सकते हैं, देन इवन दैट इज़ फाइन, बट मेक श्योर कि आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो। इसको एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो करो, एंड दैट इज़ व्हेन यू सी द रियल चेंज इन योर सेल्फ। नेक्स्ट इज डोंट फियर मिस्टेक। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, इट इज़ अ चांस to learn, it is a chance to improve, and you have to see it as that. गलती अगर कर रहे हो तो फियर नहीं डेवलप करना है, बस आपको सोचना है कि इससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊंगा। एंड द लास्ट इज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल और विद थिंग्स दैट हेल्प यू टू बिकम बेटर इन इंग्लिश। आप मूवीज़ अगर देखना चाहते हो, लाइक इफ़ यू लव टू वॉच मूवीज़ लाइक मी, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली वॉच हॉलीवुड मूवीज़ और यू कैन सी मूवीज़ इन इंग्लिश। कार्टून्स भी देख रहे हो, यू कैन स्विच इट टू इंग्लिश। अगर इफ़ यू लव वॉचिंग स्पोर्ट्स, राइट, तो उसकी कॉमेंट्री भी यू कैन लिसन टू इन इंग्लिश, राइट। सो इट्स गोइंग टू really help you a lot. Listen to podcast. आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत बना रहे हैं, तो इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनो, आर्टिकल्स को रीड करो, वीडियोस देखो। प्लीज़ इसको आप एक हैबिट की तरह डेवलप करो। These 20 minutes can improve your life. It can improve your future. I assure you that. I hope कि आप ये जो सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा मैंने आप लोगों को आज बताया है, आप इसको याद रखोगे और इसको हर रोज़ फॉलो करोगे। 5 minutes of reading, 5 minutes of vocab, 5 minutes of speaking and 5 minutes of writing can drastically change your life and it can drastically improve your English. So make sure to like this video if you found it helpful. Share it with your friends जो English बोलने से डरते हैं, and make sure to come back to the channel for the next session. Thank you.